Hello, students. I'm Dr. Megha Sharma, and today we start a topic called knowledge management. First of all, it's quite important to understand the meaning of the term knowledge management. This is basically a combination of two subjects. As you see, first one is knowledge. Knowledge is basically derived in the organization with the help of employees. You know how much knowledgeable your employees are. So, knowledge is derived from employees and how well you manage that system is management. So, knowledge management is basically a process of creating, sharing, and using the information which is already available in the organization as a source of knowledge, and how, with the help of this knowledge, you can achieve organizational goals. Okay, what is the basic meaning of it? The basic meaning is that in this process, basically, what the organization need to do is to use that knowledge, use that information, and turn up by the way, in the way, or through the process that this knowledge can be easily converted into assets. ऑर्गेनाइजेशन के जो assets होते हैं उसकी तरह knowledge management को use करना as a source of information. Although there are many definitions are there in front of you, you can go through it and understand this term quite easily. Is why this process is important for the organizational growth. ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी क्यों होता है? इसमें सबसे पहले आता है एम्प्लॉयज अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी मीन्स you have to know what are the information available in our organization, because knowledge management can be only created with the help of available resources, with the help of available information, right? Next one is employees awareness. Employee must be aware that what information is there in the organization and what information need to be given. So employee must be aware, because knowledge is derived from the part of employees. Employees is the only person who can generate information. So it's very clear that employees must be aware about it. Okay, next one is organizational change. Sometimes organization need to change its structure, its size, its designation, posts, and number of employees. So at that time of change, organization must know that we are having different employees and how much knowledge they are having, so that हमें किसकी ज़रूरत है और हमें किसकी ज़रूरत नहीं है, we can easily sort out these matters. नेक्स्ट इज टाइमलाइननेस. टाइमलाइननेस मीन्स आपका टाइम नहीं वेस्ट होता है. एक ऐसी इंफॉर्मेशन सेंटर है, एक ऐसा डेटाबेस है जहां से आपको पर्टिकुलरली पता है कि विच पर्सन इज स्पेशलाइज्ड इन विच थिंग, तो आप डायरेक्ट उसी के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, उसी के पास से इंफॉर्मेशन लेंगे, वहीं से आप नॉलेज गेन करेंगे. तो डेफिनेटली इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच टाइम कैन बी better utilized. This process is quite helpful in decision making. Of course, no doubt in this that knowledge management is a source through which decisions can be taken in very sophisticated manner. Decisions can be taken very easily, and decisions are quite, output giving or fruit giving, because whatever the decisions organization will take, that always be fruitful, because some expert people are there to help in taking decisions. So this process definitely help in decision making, because we have a lot of employees and they are carrying different specialization. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ नॉलेज. ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कैन इजीली बी डन लाइक दैट. जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी दिन आप नहीं आए हो तो आप दूसरे स्टूडेंट की हेल्प लेते हो. सेम वही इसमें होता है कि अगर मुझे कुछ नहीं आता, आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम माई सुपीरियर, फ्रॉम माई सबॉर्डिनेट, और ही और शी कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम मी. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, राइट? नेक्स्ट इज रिड्यूसेस रिस्क. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे रिस्क भी रिड्यूस होती है. हाउ इट कैन बी? It can be like this ki when decision has to be taken related to any policy, related to any strategy, so things will be, a framework can be designed and things can be done in a better manner, because we know हमें किस strategy पे काम करना है, हमें किस किस employees के साथ काम करना है, और हमें ये भी पता होता है कि हम
हमारे यहाँ जितने एम्प्लॉयज हैं क्या वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? तो रिड्यूसेस रिस्क जो है वो हमेशा रिड्यूस रहती है, रिस्क जो है वो हमेशा कम होती है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट पॉइंट इज गोल अचीवमेंट। गोल कैन इजीली बी अचीव्ड। कैसे अचीव हो सकते हैं? क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास किस तरह के एम्प्लॉयज हैं। क्या हम उन एम्प्लॉयज के साथ अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं? तो गोल्स कैन इजीली बी अचीव्ड। अगर नहीं कर सकते हैं तो वी नीड टू चेंज द organization structure size. Okay, next one, this is the benefit. I can say the heading is missing in that, but these are the benefits or advantages of knowledge management. This is basically the decision when organization will take, that decision will be informed one. Informed one का मतलब होता है कि इसमें हर एम्प्लॉय की ओपिनियन, हर एम्प्लॉय की इनपुट्स को माइंड में रखकर ही डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन कोई डिसीजन ले लिया गया है। जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आपने देखा है कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो आपको आपको बताया गया है कि अब हम लॉकडाउन एक्सटेंड कर रहे हैं, अब हमने कर्फ्यू लगा दिया है। तो ये क्या है? ये इन्फॉर्म डिसीजंस होते हैं। ऐसे ही सेम ऑर्गेनाइजेशन भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है। नेक्स्ट वन इज नो स्कोप फॉर मिस्टेक। ऑफ कोर्स देयर इज नो स्कोप ऑफ मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि हर चीज एक प्लान मैनर में हो रही है। जब आपके पास स्किलफुल एम्प्लॉयज हैं, नॉलेजेबल एम्प्लॉयज हैं, तो नो डाउट आपको कहीं पर किसी को कुछ कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो छुपा हुआ है। तब छुपा हुआ नहीं है, सब चीजें डिस्क्लोज हैं। तो डिसीजंस या मिस्टेक्स होने के चांसेस, जो आपने डिसीजन लिए हैं उसके अकॉर्डिंग मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, राइट? क्योंकि थिंग्स विल बी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज you can give better services to your customer and your employees definitely. For example of in organizations like TMU, अगर आप कहीं कोई एडमिशन के टाइम पर कोई क्वेरी है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एनिमेशन की क्वेरी है तो हम एनिमेशन में भेजेंगे, अगर कोई क्वेरी मैथ्स से रिलेटेड है तो मैथ्स की फैकल्टी सॉल्व करेगी। ऐसे ही साइमल्टेनियसली जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने डेटा को हैंडल करते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही जो क्वेरीज होती हैं उसे सॉल्व करते हैं। इट मीन्स टीएमयू विल गिव अ बेटर सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फोकस करती है नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर। उसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज, जितना ज़्यादा टैलेंट, जितने ज़्यादा स्किलफुल एम्प्लॉयज होंगे वो उतने ही ज़्यादा अपने कस्टमर को रिटेन कर सकती है, अपने कस्टमर को अपने साथ अटैच कर सकती है, राइट? ऐसे ही सेम केस एम्प्लॉयज के साथ भी होता है। नेक्स्ट वन इज स्पेंड लेस टाइम इन रिक्रिएटिंग नॉलेज। आप रिक्रिएटिंग का मतलब समझ रहे हैं? अगेन आपको अपना डेटाबेस या फिर ऐसे लोगों को रखने की जरूरत नहीं है जो ऑलरेडी आपके पास है। आपको उस नॉलेज को रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। इफ यू आर हैविंग मैक्सिमम फैकल्टी इन मैथ्स देन देयर इज नो नीड टू रिक्रूट अगेन फैकल्टी फॉर मैथ्स। दिस इज रिक्रिएशन। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिक्रिएशन मीन्स या आपको दोबारा किसी भी चीज को जनरेट करने की, रिसोर्स को जनरेट करने की या नॉलेज को जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। This topic is quite important. Emotional intelligence. As the name is say, you have to be intelligent, but in terms of your emotions. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग बहुत क्लियर है कि आपको इंटेलिजेंट होना है, बट इंटेलिजेंसी आपकी कहाँ चेक होनी है? इमोशनल के फेस में। तो सबसे पहले इसका मीनिंग आता है कि यहाँ पर यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस। सबसे पहले आपको खुद को समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज यू हैव टू हैंडल इंटरपर्सनल रिलेशंस। आपको इंटरपर्सनल रिलेशंस को हैंडल करना पड़ता है, लाइक योर फ्रेंड्स, like your colleagues, like your relatives, these all are your interpersonal relations। और उस टाइम पर आपको जरूरत पड़ती है कि आप सेल्फ अवेयर हों, you need to self regulated, you need to self motivated, you need to be empathetic and you need to have social skills। तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट तब बनेंगे जब आप ये समझेंगे what is your need in terms of emotions, and you have to manage your own emotions। Next one is this is basically dimension, but dimension कहाँ कहाँ आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है? व्हेन यू आर फ्रेमिंग स्ट्रैटेजी। जब आप स्ट्रैटेजीज को फ्रेम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किससे कितना लिंक होना है, आपकी इमोशनल लीड कहाँ पर ज्यादा आ रही है, राइट? नेक्स्ट इज कल्चर। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का कल्चर है?
you have to be more emotionally intelligent at the time of maintaining culture. Organization processes means you need to follow different process related to organizational growth. उन processes के time पे भी you have to be quite intelligent, as well as knowledge management you have to utilize better in an efficient manner. Next one is management and leadership. Of course, management means to manage resources, to manage people, to manage things. तब आपको लोगों को मैनेज करते टाइम पर आपको लीडरशिप स्किल्स अपने दिखाने हैं, लोगों को लीडरशिप स्किल्स के साथ लेकर चलना है. तो यू नीड टू बी मोर इमोशनली इंटेलिजेंट. आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किसके साथ आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यू नीड टू क्वाइट अंडरस्टैंड दीज टर्म्स फर्स्ट. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी. कहीं ऐसा ना हो इमोशनल इंटेलिजेंट होते होते आप कहीं टेक्नोलॉजी में ना पीछे रह जाएं. तो यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट एज वेल एज you have to understand the concept of knowledge management also. Last one is politics. You know, at the time of politics you have to trust your colleagues. अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इमोशनली इंटेलिजेंसी की ज़रूरत है. बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कभी आपको पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ेगी. तो इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को इतना इमोशनल इंटेलिजेंट बनाएं कि यू कैन easily हैंडल द टर्म कॉल्ड. This is quite important to understand what are the basic concept of emotional intelligence. Emotional intelligence starts from the process of self awareness. You must know what are your need. Then self regulation. You need to regulate yourself first. आपको खुद पे regulations लगानी है, आपको खुद को समझना है, आपको खुद से expect करना है कि अब मुझे क्या करना है, आपको खुद जानना है. No one is going to be uh, tell you what is good and bad for you. You need to understand it by your own. Motivation means you have to be motivated, self motivated. You have to be quite intelligent. And जब आप intelligent होगे, emotionally intelligent होगे, you need to be highly motivated. Empathy means to understand the other's point of view as well. आपको ये नहीं मानना है, आपको ये नहीं समझना है कि बस जो मैं कह रहा हूँ दैट इज क्वाइट राइट. नो, दूसरे की बात भी सही हो सकती है. दैट इज एम्पैथी. दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, जानना, दैट इज एम्पैथी. सोशल स्किल. सोशल स्किल मीन्स व्हेन यू आर इन मेकिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस. जब आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का पार्ट होते हो तो डेफिनेटली आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रांगली आपके अंदर होनी चाहिए, दैट इज सोशल स्किल्स. लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ एक्सप्रेसिव होना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, these all comes under your social skills. So these are the some sort of parameters through which you can check, you can test your emotional intelligence. That's all, students, for now. If you have some query, then we will cover it from the next lecture. Okay, students.